अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आयशा यूसुफ एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कैच अप विद आयशा। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। शी हैज़ बीन अ सुपर मॉडल, शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर, शी हैज़ बीन अ वंडरफुल एक्ट्रेस और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? शी इज़ अ वंडरफुल सोल। येस, शी इज़ नन अदर देन नादिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम नादिया, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आपने टाइम निकाला उसके लिए बहुत थैंक यू। नहीं, नॉट एट ऑल, प्लेजर। अच्छा नादिया, मैंने आपकी जर्नी माशाल्लाह हम सब ने देखी है दैट यू हैव बीन अ सुपर मॉडल, वंडरफुल अमेजिंग मॉडल। उसके बाद आप इतना अच्छा काम एक्टिंग में भी करती हैं, लेकिन ये एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी का आइडिया, बिजनेस वुमन बनने का आइडिया, वो भी ब्यूटी की इंडस्ट्री में, दैट्स ऑलरेडी वेरी क्लटर्ड, ये कहाँ से आया? Well, because I am a qualified dentist, so I thought that I wanted to maybe have a clinic or something, जिसके अंदर फिर मैंने कुछ further अपनी courses किए in aesthetics, and so I thought that maybe I should start an aesthetics clinic or whatever, जिसमें dental भी साथ में होगा. But then eventually, the place that I got was a very good location, और उस जगह की location के मुनासिबत के हिसाब से I thought that this is something which I shouldn't really have just an aesthetics clinic. I should have a salon as well. And the reason for that basically was because I had been modeling for a very very long Yes. time. 15-18 साल उस वक्त तक हो चुके हुए थे. अब जो है वो 25 साल हो गए मुझे, in the माशाल्लाह। modeling field. So उस वक्त when I started my salon, it had already been 15 years that I was modeling, and I was just like, I can't continue for the rest of my life, which is Correct. modeling, and I need to do something which is more related to my field, True. which was the medical field. But then I got the opportunity कि फिर मैं medical और beauty को इकट्ठे amalgamate करूं, तो I thought that would be the वाओ, दैट्स best. रियली नाइस। आपकी जर्नी वाकई कमेंडेबल है। अच्छा नादिया, जब हम देखते हैं ब्यूटी इंडस्ट्री जो मार्केट है वो वैसे ही क्लटर्ड है। मैं पहले एक्ट्रेसेस को देखती थी ना, तो व्हेन दे यूज्ड टू गेट रेडी, तो वो जो ब्यूटिफिकेशन ऑलरेडी नेचुरल थी ना, बस थोड़ा सा मेकअप किया एंड दे आर गुड टू गो। बट अब हमने ब्यूटी को बहुत रियलिटी से दूर कर दिया है, इतने ज़्यादा एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं। आप तो मीडिया इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं और काफ़ी अरसे से हैं। हाउ हैव यू सीन द ब्यूटी इवॉल्विंग इन मीडिया? So I think that this has existed for a very long time, except that it was not so openly talked about. It was not openly advertised, because मैंने खुद जो है वो courses किए हैं in aesthetics only, and Botox and fillers and Yes. lasers and all of that, and then after that, including thread lifting and lots of like I'm not surgical, but Yeah. non-surgical जो भी beautification की treatments होती हैं, तो I myself have done courses in that, and I myself offer that at my clinic as well. तो इसके अंदर definitely it there was always an aspect of जो आपकी हाई फाई सेलिब्रिटीज हैं, जो कि एवर लास्टिंग ब्यूटी वाली, अगर हम पाकिस्तान में भी देखें, बाहर मुल्क में भी देखें, one used to wonder, कि how is it that they are looking so beautiful Yes. at such an age, and the truth always was that there was always some kind of treatment that they were doing, True. except that it was not always so openly talked Correct. about. ठीक है ना, जैसे कि हम अगर मैडम नूर जहां की बात करें, तो उस जमाने में मैडम यूज्ड टू वेयर अ कॉलर, like a scarf around Yes. her neck, and the reason for that was because she wanted to hide the wrinkles on her neck, Oh. and so that was for her a cover up. But Correct. then there was somebody like Elizabeth Taylor, जो कि उस जमाने में at that time, I mean, Elizabeth Taylor को, she's passed away long time back as well, and she was very into beauty. I mean, she was an amazingly gorgeous woman, and she did a lot of beautification Yeah. treatments, and but those treatments were not openly talked about. True. क्योंकि लोगों के पास एक्सेस नहीं था इंफॉर्मेशन का. अब हमारे पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, और हमारे पास जरिए बहुत है. अगर कोई किसी चीज के बारे में बात करना चाहता है, so then they basically talk about it, and of course because the industry is so cluttered, people need to advertise, so that's True. why it's talked about. ट्रू। अच्छा नादिया, आपने बात की कि हमने कहा इंडस्ट्री क्लटर्ड है, लेकिन आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से हमें इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड मिल रही है, इन्फ्लुएंसर्स दे पुट ऑन, दे डोंट शो द जर्नी,
behind the treatments, but they show the result and output. तो जो लड़कियां टीनेज घर घर बैठी हैं वो अम्मा को कहती हैं हमें भी करवाना है, तो एक अनडिफाइंड प्रेशर डेवलप हो चुका है लड़कियों पे, खवातीन पर, टू गो फॉर दीज ट्रीटमेंट्स. Yeah, I think unfortunately एक अनडिफाइंड किस्म का प्रेशर जो है वो हमेशा से था. अगर आप पुराने जमाने में जब लड़कियों को जो है वो 3-3 हफ्ते घर पे बिठा दिया जाता था मायूं से पहले, उनके उपटन की जो है वो उनकी मालिश हो रही होती थी, दैट वाज आल्सो एन अनडिफाइंड ब्यूटी स्टैंडर्ड, कि जी ओ रंग को जो है वो गोरा करो, बिकॉज इट वाज अनडिफाइंड. शी न्यू कि उसको घर में क्यों मायूं के लिए बैठना है, एंड दैट प्रेशर वाज अ लॉट फ्रॉम द फैमिली. तो ये लड़कियां करती थी, उनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती थी. If they were working, studying, whatever it was always, that thing was always there, except that it was at that time it may have been defined or pressured by family, but अब जो है वो आपको society भी pressure करती है. Absolutely. So that of course is an added kind of a pressure, and I really do think that girls for sure, I think खानदानों में लड़कियों को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दैट हैज टू बी apart from any beautification procedures. Now even makeup is beauty, ठीक है ना. आप अपने मेकअप के जरिए ब्यूटिफिकेशन को एनहांस कर रहे हैं. हम क्लियोपैट्रा के जमाने में अगर देखें वो दूध में नहाती थी. That was also an undefined pressure, right? Because when people think, oh my god, दूध में नहाती थी, like it used to be talked about at that time. But why would she do that? If you go into the science behind that, इसके वो दूध में नहाती थी because उसमें लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड में जो है वो आपकी बॉडी में एक्सफोलिएशन करता है. So that was undefined beauty and pressure as well. So ये चीज तो सदियों से चलती आ रही है, except that like the pressure I feel is added more and more, where I feel then the girls need to be more and more self-confident. कि भले अगर आप ट्रीटमेंट्स पे अगर आपको कुछ कराना भी है, it's okay, but don't let the treatment define who you are. एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक रियल ब्यूटी तो यही है कि आप अंदर से, सबसे पहले तो यही है ना, अंदर से खूबसूरत. तो आप में जो आपने कहा सेल्फ कॉन्फिडेंस, व्हेन यू कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली, व्हेन यू कैन टॉक कॉन्फिडेंटली, वॉक कॉन्फिडेंटली, दैट इज योर रियल ब्यूटी. एंड ऑल्सो एक्सेप्टिंग इट, बिकॉज इफ अल्लाह हैज क्रिएटेड यू इन अ सर्टेन वे, यू आर ऑलरेडी वेरी ब्यूटिफुल. I have seen people, they try to change their shape of body, face features. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर आपको किसी तरह बनाया गया है, आप एनहांस करें, बट उसको पूरा ही तब्दील ना कर दें. Yeah, but like I said again, that's where doctors are, they are doing all of this work as well. Plastic surgeons का यही काम है. 360 lipo करना, body makeovers करना, mommy makeovers करना, breast reduction, breast enhancement, butt reduction, butt enhancement, face fillers या cheek fillers, nose job, chin implants, ये सारी जो चीजें हैं ये plastic surgeons का काम है. And of course, plastic surgeons are becoming more and more popular in this world. So there is a reason for that. But again, like I said, even if you are getting such treatments done, if you are not going to be confident in who you are, you will still not look and feel beautiful. Correct. Very nice thought, Nadia. You have always been very confident all your life. You have taken a lot of bold decisions for yourself, being very resilient. लेकिन क्या होता है कि बहुत सी बच्चियां, उनमें ख्वाब तो होते हैं कि हमें भी कुछ करना है, पैशन है, लेकिन वो पैशन के आगे, स्पेशली अगर उनको मीडिया फील्ड में जाना है या अपना बिजनेस करना है, तो फैमिलीज एक्सेप्ट नहीं करती. आपको क्या लगता है कि ऐसी सूरत हाल में लड़कियों को गिव अप कर देना चाहिए अपने ड्रीम्स पर, अपने पैशन पे, या फिर उन्हें रिबेलियस होके उसके लिए वर्क करना चाहिए? I think, to be rebellious is not really the right way to go. I think कि definitely आपको अपनी फैमिली के सपोर्ट के बगैर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. अभी हमने रिसेंटली ही जो है वो एक खबर जो देखी है रिगार्डिंग, अब I mean she was a colleague of mine, and Humaira Asghar जो है,
I do know for a fact that she did not have the family support, Yeah. and she was struggling in this field, and she wanted कि उसको इस field में वो आए. उसको mother की तरफ से इजाज़त थी, लेकिन अब eventually whatever that happened to her, sadly, she was found dead in her Yes. apartment. But उसके बाप और भाई ने उसको नहीं accept किया ना. इतनी ज़्यादा जो है वो sad situation में, it's not worth it then. At the end of the day, it's not worth it, Humaira, definitely, she I would say that she is, she was perhaps doing all of this in a very defiant Yes. and resilient manner. But at the end of the day, it still didn't pay off because, she was still alone at the end of the day, right? Exactly. So it's not worth it कि आप rebellious होके लड़ झगड़ के मर के आप जो है ना वो ये फील्ड में आए. आप डेफिनेटली अब आजकल के ज़माने में बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं, आउटलुक्स फिर भी चेंज हो गए हैं. आप मीडिया की तरफ अगर आना चाहते हैं, डेफिनेटली देयर आर लॉट्स ऑफ different avenues to enter and pursue as well. With the support of your family, it is extremely necessary. You can't rebel and then expect कि जी आपको चले दुनिया जो है वो आपको accept करेगी, लेकिन दुनिया जो है वो आपकी दुनिया नहीं है. आपकी दुनिया आपकी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स जो इनर सर्कल है, दैट इज योर. वेरी ट्रू. अच्छा, इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि नादिया, हम देखते हैं सोसाइटी में, हमने एक सना यूसुफ का केस देखा, 19 साल की बच्ची. हमने हुमैरा का केस देखा. सो आई जस्ट वांट टू नो दैट इज वुमेन सेफ इन आवर सोसाइटी? वो तो काम करने आई है ना, वो अपना काम कर रही थी, बट एक को शूट कर दिया घर जाके, और एक की बॉडी कितने दिनों से घर पे किसी को पता ही नहीं है. सो इज वुमेन सेफ इन आवर सोसाइटी? I mean, well, they are two very different cases. Sana was a totally different case. I mean, she was actually in her house with her family. Yes. वो तो safe थी, yes. लेकिन उसके बावजूद वो safe नहीं थी, And despite her pushing the guy away and refusing कि भाई, I don't want any connection with you. I don't want to have any kind of whatever, even association with you. Or on the other hand, Humaira, unfortunately, she was just because she maybe wasn't in touch with too many people. Like I'm saying, I don't know कि उसके दोस्त, करीबी दोस्त कौन थे, लेकिन हमारे भी अपने सर्कल में करीबी जो दोस्त होते हैं, उन कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप उनके साथ इन टच होते हो. यार 4 दिन हो गए, तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, क्या हो गया भाई? खैरियत है? Where the hell have you been? ये तो एक सवाल आता ही है ना कि what the hell, for God's sake, यार एक हाय का मैसेज ही कर दो. ये हमारी तो दोस्तों के सर्कल में तो ये होता है ये. So this is something that I don't know, कि हुमैरा का क्या था, लेकिन definitely I feel that women are more and more they are more susceptible to the evils of society today. जितना हम actually कोशिश कर रहे हैं औरतों को इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग बनाने की, उतना ज्यादा जो है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो कोई किसी किस्म की एक रिफ्ट जरूर आ रही है, where even the girls are becoming a lot more resilient, and even on the flip side the guys are of course becoming resilient as well. So even they are wanting to take things in their hands. And ये जो लड़का है सना यूसुफ का, वो जो भी लड़के का नाम मुझे भूल रहा है, but he was also a 22-year-old boy. Exactly. My son is 21 years old. I mean, I can never imagine that my son would ever go to this point to shoot a girl. Yes, I mean, where did something go wrong in that boy's upbringing? Right. अच्छा नादिया, जब हम देखते हैं सोसाइटी में जो शोबिस वर्ल्ड है, इसे बड़ा ग्लैमरस वर्ल्ड कहा जाता है, राइट? तो बाहर से तो ये सब लाइफ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमने इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ को भी देखा है, हमने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को भी देखा है कि डिप्रेशन और लोनलीनेस में जाते हुए, बिकॉज ऑफ द लोनलीनेस दे गेट इनटू डिप्रेशन एंड अल्टीमेटली दे एंड देयर लाइफ. आपको भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो शोबिस का ग्लैम वर्ल्ड है, पीछे हर इंसान अपनी एक स्ट्रगल कर रहा है और एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस है, एग्जिस्ट करता है? देखिए, I think that it depends on the kind of
family setup you come from, you know, that is the biggest thing. I mean, there are lots of people in this field जो कि अपनी फैमिली सपोर्ट के जरिए ही जो है वो आगे बढ़ते हैं. And you know, girls, I mean, including myself, for example, so many of my own friends who I know, they're all married as well, बच्चे भी हो गए, काम भी कर रहे हैं, और you know, उनकी फैमिली की सपोर्ट भी है. All of that is there, but at the end of the day, आपकी again जो inner आपका circle है, that really matters a lot, you know, कि आप अगर काम कर रहे हो तो in this field, अच्छा अब ये जो field outwardly glamorous है, outward glam जो है is just a facade, it is a facade. जो struggle है वो हर काम में स्ट्रगल है. आप जॉब करेंगे उतनी ही स्ट्रगल है, ठीक है ना, आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं उतनी ही स्ट्रगल है. देयर इज नो डिफरेंस. इन फैक्ट आई फील कि जो ये वाली फील्ड है, एट टाइम्स इट इज मोर ग्रूलिंग देन अ जॉब इन एन ऑफिस, क्योंकि आपको तो आपकी टाइमिंग्स जो है वो लिमिटेड है. खत्म है, ये तो चल ही रहा है, ये तो कॉन्स्टेंटली कोई टाइमिंग ही नहीं है इसकी, यू नो. और आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं, यू नो, रात के वक्त भी शूट कर रहे हैं, दिन में भी शूट कर रहे हैं. ये, यू नो, इट्स गुड टू बी बिजी, ऑफ कोर्स इट्स वेरी गुड टू बी बिजी. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो आउटवर्डली ग्लैम जो दिखता है लोगों को, इट्स रियली नॉट ग्लैमरस, that glamorous on the inside. Yes, it is a lot of fun when you're working and you're on set and all of that, but it is hard work as well, you know. तो जो हम दिखा रहे होते हैं लोगों को, वो तो सिर्फ बाहर वाली चीज देख रहे होते हैं. जो अंदर चीजें चल रही होती हैं, it's not easy at all, you know, and it's the same I feel for any other फील्ड एज वेल. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस फील्ड की स्ट्रगल लोग देखते नहीं है, उनको पता नहीं होता है कि स्ट्रगल क्या है. यहाँ पे सिर्फ आउटवर्डली फसाड देख रहे हैं, और यू नो, इनर जो है वो किसी को पता नहीं है. एग्जैक्टली यही ना, सोशल मीडिया पे तो आप किसी की लाइफ का एक चंक देख रहे हैं, उसकी जिंदगी में पीछे क्या चल रहा है, वो क्या किस चीज से डील कर रहा है, ये वो ही जानता है. हैव यू एवर फेल्ट लोनली और डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स? Well, alhamdulillah, I can't say that when I see things around me, yes, I feel very sad and I feel very upset कि ये नहीं होना चाहिए, you know, but thankfully for my own self, I feel that, you know, because I have my family and, you know, the support around me because of my friends and my family and all of that, तो वो चीज मुझे जो है पर्सनली नहीं अफेक्ट करती है, like in my own capacity. But when I look at the others, you know, I feel very very bad, you know. मतलब मुझे समझ नहीं आता है. इसी वजह से जब हुमैरा की खबर आई थी, तो हुमैरा की खबर जिस दिन आई थी उसी दिन मैंने वीडियो बनाई थी, एंड आई सेड आई जस्ट, this is a message that goes out to all women, not just हुमैरा. मैं हुमैरा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जी आप अपनी जिंदगी की take control of your life, you know. And take control of your life is again not by saying कि जी मैं मारखा ये करूंगी, ऐसा नहीं है. आप करें, आपको जो करना है आप सही तरीके से करें. एंड सही तरीका is again not in the media field, whatever other field you're going into. I think education is so important. एक चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत, मैं कहूँगी, अच्छी नहीं लगती कि जब सोशल मीडिया पे हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं या इन्फ्लुएंसर या कोई भी कंटेंट बना रहा है, लोगों को लगता है पब्लिक फिगर जो है ना वो पब्लिक प्रॉपर्टी है. एंड दैट्स हाउ जब वो कमेंट करते हैं, कोई भी कमेंट आता है, सोचना नहीं है, मतलब उन्हें लगता है कि ये एक पोस्ट है, इस पे तो हमारा हक बनता है कि हमने जो लिखना है हम लिखेंगे, राइट. आपके साथ भी ऐसा बहुत होता होगा दैट यू हैव पोस्टेड समथिंग, ठीक है, यू हैव माशाल्लाह बीन सो कॉन्फिडेंट, वेरी वोकल अबाउट योर ओपिनियंस, अनअपोलोजेटिकली बोल्ड अबाउट योर ओपिनियंस, तो बैकलैश भी आता होगा और बहुत से लोगों के साथ होता है. हाउ डू यू डील विद, यू नो, नेगेटिव कमेंट्स, ट्रोलिंग, कंट्रोवर्सीज? How do you deal with that? अच्छा, शुरू में जब ये इंस्टा का नया यू नो, लाइक व्हेन वी यूज्ड टू स्टार्ट गोइंग लाइव, यू नो, कोविड के ज़माने में मैंने बहुत लाइव्स किए. उन दिनों में तो इतना ज़्यादा लाइव कोई करता भी नहीं था. सो इन दोज डेज आई यूज्ड टू गेट वेरी इरिटेटेड एंड वेरी अनॉयड, यू नो, बिकॉज लाइक लाइव के दौरान जब आप कमेंट ढूंढ रहे होते हो कि यार मेकअप के बारे में कोई मुझसे सवाल पूछे, मैं मेकअप से रिलेटेड जवाब देना चाहती हूँ, बिकॉज मैं मेकअप के ट्यूटोरियल्स कर रही होती थी.
सो बीच बीच में ये इस किस्म के घटिया किस्म के कमेंट्स आ रहे होते, तो आई यूज्ड टू लाइक कीप ऑन रिप्लाइंग टू देम एज वेल, कि ओके। किसी ने चुड़ैल बोल दिया तो मैंने कहा हाँ तू चुड़ैल, यूं करके. सो आई यूज्ड टू फील, बिकॉज इन द लाइफ आई यूज्ड टू गेट रियली अनॉयड कि यार ये खामा में जो ये फजूल वाले कमेंट्स क्यों आ बोल रहे रहे हैं, हैं? ये मेरी कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं. जो असल में जो कोई खातून कोई हाँ, पूछना चाह रही है सवाल रिगार्डिंग करेक्ट। मेकअप, कि जी मेरा फाउंडेशन, ये तो मेरी लिपस्टिक, ये तो मेरी आई मेकअप, ये तो मेरा ये, तो जो भी वो पूछ रही, आई कैन नॉट रीड दोज क्वेश्चंस हाँ, बिकॉज सो मेनी रैंडम ट्रू। कमेंट्स वर कमिंग. सो इन दोज डेज, बिकॉज कमेंट्स का मुझे पता भी नहीं था कि आप कमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर हाँ, सकते हो. वी वर नॉट यूज्ड टू गोइंग लाइव. So, there were many things that kind of changed even as far as Insta features were concerned. तो शुरू में मैं काफ़ी जवाब देती थी, लेकिन बहुत दफ़ा मैंने अभी आज भी मेरे अगर कोई इस किस्म का कोई सवाल आता है या कोई कमेंट आता है रिगार्डिंग माई चिल्ड्रन फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू, if I feel that it is actually worth it to like reply Respond back, to them, yeah. तो I do actually, बट वैसे अब आप नहीं करती, बट वैसे explain अब जो करती। है वो मैं इतना नहीं करती हूँ. जैसे कि अभी रिसेंटली एक कोई औरत है या जिसने मेरे अपने एक पोस्ट के ऊपर हुमैरा का ही जब मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसके ऊपर किसी ने जो है वो बोला कि हाँ अब तू होगी नेक्स्ट और समथिंग लाइक दैट. नहीं, और इंशाल्लाह अब तू होगी अगली, यूं करके ना कुछ. तो उसके ऊपर मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया, लेकिन मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने उसको रिपोर्ट कर दिया, और मैंने लोगों को भी कहा कि भी इसको रिपोर्ट करो. और वो औरत ही थी जो कि जिसने ये मैसेज लिखा था, ना हम जस्ट थिंकिंग, मैंने कहा एक्चुअली हम यहाँ बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट, विमेन फिक्सिंग ईच अदर्स क्राउन, और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जब कोई लिख भी रहा है किसी के लिए, हम तो कभी वैसे भी ना बोले ना, और आप किसी के लिए लिख रहे हो, लिख रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे, मतलब आप वो चीजें अपने दिमाग में प्रोसेस कर पा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस, एंड यू एक्चुअली हैव दैट हिम्मत टू राइट इट एज वेल. आप सोच के आप वो फौरन से डिसमिस कर देते हो, नहीं यार मैं कैसे इसको बोल सकती हूँ, बददुआ दे सकती हूँ ऐसी, वो भी इंशाल्लाह करके. लेकिन आपने लिखा भी वो, तो पता नहीं क्या दिमाग में. अच्छा नादिया, जब कभी आप किसी मुश्किल में हो या कुछ ऐसा फेज है, सबसे पहले किसके पास जाती हैं हेल्प के लिए? योर पर्सन, योर होम. I would say my friends would definitely. I have a very like ये जो मेरी दोस्तें हैं, that friend. हाँ, ये जो मेरी दोस्तें हैं ये मीडिया से नहीं है, ये मेरी दोस्तें मीडिया की फील्ड से पहले की ही दोस्तें हैं, एंड दे आर माई गो टू, कि जो भी कोई बात करनी हो, कुछ भी हो, दे आर द पीपल हु आई कैन टॉक टू एंड बी ओपन. लेकिन मीडिया की फील्ड से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मेरे, आई वुड से लाइक जिनके साथ मेरा अच्छा करीबी रिश्ता है, who I can discuss a lot with as well, except that there are some things which you can't necessarily discuss with them. तो वो जो चीजें हैं वो मैं सिर्फ अपना, जो मेरी बहुत ही करीबी दोस्तें हैं, जो मेरी लाइक आई सेड अब से नहीं है, वो बचपन से, हाँ ऑलमोस्ट यू कैन से बचपन से हैं, तो उनके साथ जो हैं वो आई एम स्टिल इन टच विद देम, एंड आई एम श्योर दे मस्ट गिव यू जेन्युइन एडवाइस. आपको सुनती भी होंगी और फिर वो आपको एडवाइस भी, वो जो आप सुनना चाहते हो, जिससे यू फील काम. हाँ, बिल्कुल. एंड आई थिंक what matters most is when you have to discuss something with somebody, they should listen to you without judgment, ये बहुत जरूरी चीज होती है. अगर आप किसी और को बता रहे होते हो, जैसे कि हमारी जो अवाम है, they are the type who will immediately without any proofs, they are going to immediately become judgmental, right? That is something they react without thinking about the situation, they have to react. हाँ, नहीं, but that they react in a judgmental way. हमारे यहाँ निज़ाम में जो सोसाइटी की थिंकिंग है, उसमें अनफॉर्चुनेटली कोई इस किस्म का, खास तौर पे किसी भी मीडिया पर्सन से रिलेटेड कोई भी खबर आती है ना, किसी ने कुछ किया हो ना किया हो, कोई एलिगेशन हो, कुछ भी हो, एनी काइंड ऑफ अ थिंग,
basically the person is guilty until proven innocent, whereas बाहर मुल्क में you are innocent until proven Yes. guilty. तो लोग जो हैं बस वो उन्हें जो चीज़ दिख रही है ना वो अच्छा वेरीफाई भी नहीं करते, सबसे बड़ी Yes. प्रॉब्लम ये है। एटलीस्ट Yes. आप वेरीफाइड सोर्स पे जाएं, आप उस पे बिलीव करें, नहीं आप स्क्रॉल करते करते ओ ये हो गया, ये सच है। एंड पता है ये जो मेंटालिटी है ना, ये हमारी नानी दादियों में भी है। हाँ फेसबुक पे अगर इंस्टा पे स्क्रॉल नहीं कर रही होती हमारी नानी दादियां जो हैं, वो फेसबुक वो इंस्टा पे स्क्रॉल नहीं करती हैं, वो टिकटॉक्स नहीं देखती हैं, वो फेसबुक, क्योंकि फेसबुक इज द मोस्ट ओल्डेस्ट प्लेटफॉर्म। कोई खबर देखेंगी किसी सेलिब्रिटी के बारे में, कोई भी कि जी इसका अफेयर उसके साथ चल रहा है, चाहे वो मैरिड हो ना हो, डिवोर्स्ड हो ना हो, क्या हो अल्लाह जाने, कुछ भी हो, किसी ने कोई खबर डाल दी ना, oh my god, you are now trying to prove them wrong, for god's sake it is not true, for god's sake, ये मतलब आप क्यों यकीन कर रही हैं विदाउट फैक्ट्स, और उस पे जो तड़का लगा के आगे वो बात पहुंचाई हाँ, जाती है। और फिर अच्छा देखा सुना तुमने, यस ये जो है ये तो ऐसी निकली, यू लाइक आप पूरा कैरेक्टर डिफाइन कर देते हैं उस एक न्यूज को, उस इंसान का। मतलब आपने एक न्यूज पढ़ ली, अगर अच्छी होगी तो आप उसको अपने जहन में इमेज बना लेंगे, यार ये इंसान अच्छा है, इंसान डायरेक्ट इंसान अच्छा। और अगर एक न्यूज ये इंसान ही बुरा है, वो अपनी लाइफ में क्या पता कितने अच्छे काम कर रहा हो, यू नेवर नो, ये इंसान ही बुरा है क्योंकि एक न्यूज ऐसी आ गई। हाँ, और वो न्यूज सच्ची भी ना हो, वो किसी ने कोई रैंडम किस्म की कोई चीज, ओ जैसे आजकल जो है वो अगेन इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस ट्रेंड, एआई की वजह से आजकल जो है वो अगर कोई लड़का लड़की इकट्ठे खड़े हुए भी है ना, देयर एक्टर्स एंड दे आर फ्रेंड्स, दे आर यू नो दे नॉट नेसेसरली कपल, देयर कॉलीग्स, अगर आप इकट्ठे खड़े हुए भी हैं, आप एआई के जरिए उनको आप किस करवा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली जिस जामे में मैं थी, जुड़वा, उसके अंदर यू नो ऐना जो है वो उसकी जो मेरा बेटा बना था अदनान, उसके साथ भी उसकी तस्वीरें हैं, फिर वो जो अली दयान लड़का है उसके साथ भी तस्वीरें हैं, उसके बाद अब जो है वो परवरिश में अगर समर के साथ तस्वीरें, I'm thinking what in the world are these people trying to do? ये हर एक के साथ ये AI की वीडियोस क्यों बना रहे हैं ऐना की? I'm just shocked, मतलब मुझे ये बहुत ज्यादा कि यार वो बेचारी लड़की अगर किसी के साथ खड़ी हुई भी है, उसको पहले अदनान के साथ किस करवा दिया, फिर अली दयान के साथ किस करवा दिया, अब समर जाफरी के साथ, what are they, in the world are they trying to do? But this is just to sensationalize and to malign her character for no reason. For no reason. चलिए और YouTube पे चला देते हैं, TikTok पे चला रहे हैं, Insta पे चला रहे हैं. You're thinking, my God, this is fake. For God's sake, people are so stupid. They are so dumb. They don't realize it is fake. This AI so dangerous, is so very, dangerous. very, very and dangerous. for your mental health especially, चाहे आप जितना भी क्लीन हो, बट अगर आप कंटिन्यूसली एक चीज देखते रहेंगे, एक तरह के कमेंट्स पढ़ते रहेंगे, so your mental health will be completely tarnished, you know. Yeah, I mean, like, you know, if there is such fake stuff going on and people will sadly believe it, that is the biggest, you know, issue. अच्छा नादिया, कभी ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया में या रियल लाइफ में भी आपको लगा हो कि आप अपने आप को बहुत ओवर एक्सप्लेन कर रही हैं, ज़रूरत नहीं है इस बात की, लोगों को वही जज करना है जो वो करेंगे, लेकिन आपने कभी बहुत अपने आप को ओवर एक्सप्लेन किया क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो गई उस सिचुएशन से? Over explain nahi, but I do think that there does come some point where you do need to give your own version of what people might be believing कि भाई ये चीज ऐसे है, तो आपको जो है वो अगर एक मौका मिल रहा है या अगर आप एक मौके का फायदा उठाते हैं, to give your own version. People might believe what they want to believe, and if they do want to believe you, they will. If they don't, they won't. But at least ये एक चीज आपने अपनी तरफ से जो है वो उसकी वजाहत पेश कर दी है कि भाई this is what it is. I mean, you know, जब आपके अपने मुंह से वो चीज आ रही होती है, तो I think a lot of people sometimes will, you know, kind of like back off or calm down, or they will say कि हाँ नहीं यार वो तो उसने ऐसे बोला था, तो नहीं इसमें ये नहीं है, सच्चाई नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं। ट्रू। और मुझे लगता है कि जो एक्चुअली आपके अपने होते हैं ना, वो आपके साथ हर हाल में खड़े होते ही हैं,
बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस हैं, बाकी सब नॉइजेस हैं. पीपल हु बिलीव यू, दे विल ऑलवेज बिलीव इन यू. या सो अच्छा, एक चीज़ और नादिया, कि अब तो माशाल्लाह आपने कितनी चीज़ें लाइफ में कर ली हैं, बट ऐसी कोई ड्रीम बकेट लिस्ट में कोई ऐसी चीज़ है जो रह गई है, अभी करनी है? Yeah, definitely. I think there's a lot हुँ, that still needs to be. I mean, of course, I still haven't traveled enough. हाँ. Even if I've traveled enough on my own, I haven't traveled enough with my kids. I think that Yeah. this is something that I want to do with them. And the other thing is, like as far as my business is concerned, हुँ, I would want कि मैं और ज़्यादा उसको expand एक्सपेंड करूँ करो. एंड और ज़्यादा जो है वो उसको एक बड़े लेवल तक लेके जाऊं बट इट एक्चुअली बिकम्स डूइंग बिजनेस इज नॉट नॉट इजी इट्स नॉट इजी ईज़ी. एट आप ऑल लोगों को बिल्कुल लगता है भी कि नहीं आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं, सो यू आर कमिंग लाइक अ बॉस, एंड आई नो नो बिलीव नो द बॉस इज़ एक्चुअली वर्किंग या एवरीथिंग, या यू या नो. नॉट एट ऑल देयर इज एब्सोल्युटली नो वे कि या. पाकिस्तान में बिजनेस करना जो है वो आसान है बिल्कुल भी आसान नहीं हुँ, है मतलब अब तो और ज्यादा मुश्किल हो मुश्किल गया है. है क्योंकि टैक्सेशंस इंपोर्ट ड्यूटीज तो ये तो वो तो इतनी सारी चीजें एंड होती हैं कि जो आपको कॉम्पिटिशन, बिकॉज़ एंड ऑफ कोर्स एवरीवन इज़, कंपटीशन यस डूइंग द थिंग. आपको सोशल मीडिया की जो भी एक चीजें हैं वो कॉन्स्टेंटली आप उस हाँ. चीज में स्ट्रगल कर रहे होते हो फिर बहुत सी और चीजें हैं कि आप सोचते हो कि हाँ यार ये तो करना मुझे तो ये करना है लेकिन जब आप एक्चुअली करने हाँ. निकलते हो तो इट सीम्स लाइक ओ माय गॉड ये क्या मैं कैसे हाउ एम फिर आई आपको गोना डू लग इट पता चाहता है. इट्स यस नॉट यस दैट यस ईज़ी. अच्छा नादिया, आपकी ब्यूटी का क्या राज़ है? माशाल्लाह, यू हैव मेंटेन्ड योरसेल्फ सो वेल, यू हैव बीन इन दिस बिज़नेस, और एक प्रेशर कांस्टेंट रहता है. यू हैव बीन अ सुपर मॉडल माशाल्लाह. तो वो कांस्टेंट प्रेशर टू लुक यूथफुल, टू लुक ब्यूटीफुल, बट व्हाट मेक्स यू ब्यूटीफुल? um I mean, of course, I can't deny that a lot of my features have already been gifted to me by God. हुँ. Even if it's my height या. or if it's, even just my body structure, for example, face की भी जो कुछ features हैं are, of course, gifted naturally by God. But उसके अंदर I can't deny कि मेरी अपनी as far as even maintaining my body is concerned, of course मेरी अपनी मेहनत है उसके अंदर. And the other thing is that yes, I like because I myself am in aesthetics as well. हुँ. तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं definitely अपने face पे भी करती हूँ. ठीक. Like wrinkle reduction के लिए राइट. botox हो गया, little bit of fillers under eyes के नीचे क्योंकि मुझे लगता है कभी हुँ. बहुत घड़े पड़ गए हैं तो अच्छा थोड़ा बहुत under eyes पे fillers सो कर इट लिए. डज़न्ट हैव साइड इफेक्ट इन अ लॉन्गर रन? No, हुँ. no, not at एंड all. इट स्टेज लाइक दैट, मतलब उसका कोई आप जैसे. नहीं ऑफ कोर्स मेंटेनेंस तो है हाँ, ऑफ कोर्स मेंटेनेंस मेंटेनेंस करनी है पड़ती है या ना? डेफिनेटली नथिंग इज विदाउट मेंटेनेंस. या. आपको एक्सरसाइज भी जो है वो हाँ. रोज नहीं तो चले हफ्ते में 3 दिन जिंदगी भर तो करनी है ना ट्रू. टू लुक अ सर्टेन वे. या. सो दैट इज योर मेंटेनेंस तो अगर आपको एक्सरसाइज करनी है आपको खाने पे कंट्रोल करना है ये सारी चीजें दिस इज ऑल पार्ट ऑफ मेंटेनेंस ट्रू, तो ये ट्रू, जो ट्रू. ट्रीटमेंट्स हैं दिस आल्सो रिक्वायर्स हाँ. मेंटेनेंस. आपकी लाइफ का वो ऐसा कौन-सा फेज़ है जिसने नादिया को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया एज़ अ पर्सन? कौन सा फेज. हाँ, या किसी भी ऐसी चीज़ ने, जिसने आपको एज़ अ पर्सन ट्रांसफॉर्म किया? I think over a period of time from the time that I actually started modeling. हाँ. Before modeling, I was actually a very shy person and I was, रियली? yeah, very reserved and, मतलब अपनी दोस्तों में ही हाँ. and all of that. But I think that modeling overall really did change me. I think I became a lot more bolder. हुँ. And ये अभी की बात नहीं है, ये बहुत पहले की भी बात है, that I mean, if there was any kind of an incident, I mean, again, I've spoken about it हुँ, lots हुँ, of हुँ. times before as well. लेकिन अब भी मैं अगर उस चीज के बारे में बात करूं कि I mean, this is like I think even before I was married, I've already been married 21 years, so ये माशाल्लाह. शादी से पहले की ही बात है कि I was coming back from some shoot and Seaview था main हाँ. Seaview. I used to live in Seaview as well, and some car big
पजेरो लैंड क्रूजर हाँ, टाइप कार स्टार्टेड फॉलोइंग मी, और मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं अच्छा, इधर उधर गलियों में घुस के करके लें, बट दिस पर्सन वाज फॉलोइंग मी, and by chance I saw a police van ओके, right like in one of the gullies. हाँ, हाँ, So जब वो पुलिस वैन मुझे नजर आई तो मैंने पुलिस वैन के बराबर में गाड़ी रोकी और मैं निकली, और मैं गुस्से से निकल कर मैंने कहा ये बंदा मेरा पीछा कर रहा है। तो वो पुलिस वाला, वो बंदा भी निकला गाड़ी से, और आई डेंट ऑफ कोर्स आई डेंट नो हु ही वाज, हुँ, बट वो बंदा जब निकला तो जो पुलिस वाला था वो उसने उस बंदे का यूं हाथ मिला के ना यूं करके ये सर नीचे झुकाया, अच्छा, एंड आई वाज लुकिंग एट दिस पुलिस गाय एंड आई एम थिंकिंग ये बंदा मुझे प्रोटेक्ट करेगा। I was like, okay, this is the right time, let's just get out of here। तो I मैं might have to फौरन, protect him. हाँ, मैं एक औरत होते हुए कंप्लेन कर रही हूँ, ये बंदा मेरा पीछा कर रहा है, और वो बंदा उतर के, मुझे नहीं पता वो कौन था, बट ही वाज अ यंग गाय, Yeah. बट वो बंदा उतर के पुलिस वाले का हाथ करके, Oh और वो my पुलिस वाला God. यूं करके उसको सर झुका रहा है। आई वाज लाइक, ओके, दिस इज द राइट टाइम, यहाँ से भागो। सो आई इमीडिएटली गॉट इनटू द कार बिकॉज माय कार वाज ऑन एंड एवरीथिंग। तो मैं फौरन से अपनी गाड़ी में बैठी और मैं दूसरी जगह निकल गई बिकॉज दैट गाय वाज मीटिंग दैट पुलिस गाय। तो इट वाज द राइट टाइम फॉर Yeah. मी कि मैं निकल You गई। were very mindful that time. Yeah, so now this is something that I kind of got that himmat at that time Wow. because of this field only. True. ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आप समझती है कि इंसान में सबसे खूबसूरत है, जो नादिया को लगती है? Quality. एक कोई क्वालिटी I think जो आपको भाती है लोगों में, इम्प्रेस I think करती है। respect, like when people give you or others a lot of respect, I think ये चीज मुझे बहुत भाती है, like हाँ, प्यार, मोहब्बत, respect, this is something that I think it really makes me feel very genuinely towards that person. वाह, दैट्स रियली नादिया, क्लोजिंग पे जा रहे हैं। कुछ अब मैं लाइट हार्टेड क्वेश्चंस लूंगी आपसे। अच्छा, मुझे बताएं वो कौन सी आपकी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन है दैट यू वुड लाइक टू रिकमेंड टू द ऑडियंस? I think any beachy kind of a place. I'm a real Really? beachy person, yeah, so any beach resort kind of a place, and I'm Maldives, Bali, like that? yeah. I'm also the type who loves, के clear waters हो, और नीचे coral reefs नजर आ रहे हैं, and like I'm kind of like swimming at the surface or enjoying all of that. I'm really that kind of a True person. nature lover is here. हाँ, yeah. है ना? अच्छा, ऑडियंस का सवाल है कि ऐसे होते हैं कि ब्राउन फैमिलीज में तो जो लोग होते हैं मिडिल क्लास, वो जाके ठेले से भी सब्जियां ले लेते हैं, राइट? क्या आपने कभी लोकल वेंडर से ठेले से जाके सब्जियां ली हैं? Yeah, all the Really? time. There's a ठेला close to my house, वाह, जो कि actually उसके पास fruit बहुत अच्छा होता है. हाँ, So I actually avoid going to a shop, and I would rather get the fruit from the ठेला. And जो छाबे वाले जो घूम रहे होते हैं, उनके पास cherries या फालसे या जो भी है, तो वो तो all the time अमरूद and Wow. all of that, yeah. So I think you are very much updated on the rates of the all the things, no? Maybe, yeah. Not सब्जियां वगैरह नहीं, लेकिन हाँ. मैं फल बहुत खरीदती हूँ, so Wow. फल वगैरह is अच्छा, more. ऐसे कभी हुआ है, हो सकता है मॉडलिंग के स्टार्ट के डेज में या कभी, कि आप किसी लेविश फैंसी होटल गई या वहां पे तो बड़े मिनी क्यूट से जो है ना क्रीम्स होते हैं, एंड सो हैव यू एवर टेकन दैट विद यू? If I feel that the scent is really good, हाँ, then maybe just the cream. But yeah, a lot of times I've taken the bottles, क्योंकि हाँ, bottles जो हैं वो बहुत ज्यादा मुझे यूजफुल होती sleek, हैं। जो मोटी वाली बोतलें होती हैं वो मुझे नहीं अच्छी लगती, हाँ, लेकिन जो sleek bottles होती हैं वो मुझे हाँ, actually अच्छी लगती, because I can actually refill my own creams and my own hand wash for travel or even for my purse. So I actually, yes, I do और sometimes कंटेनर्स take जितने भी हों कम ही लगते हैं। हाँ, बट कंटेनर्स अच्छे हों, उसकी क्वालिटी भी थोड़ी सी अच्छी हो, स्लीक हो, अगर Yeah. वो ऐसे हैं हाँ, तो फिर मैं ले लेती हूँ। okay. One last message that you want to give to the audience, especially the young girls who want to follow their passion, who wants to, do something of their own in their life, but they're just not being able to confident enough. What would you like to say?
आई थिंक दैट लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं डेफिनेटली कि आप करना चाहते हैं, यू वांट टू डू, एंड आई थिंक दैट हैविंग एस्पिरेशंस इज वेरी वेरी गुड, लाइक आप लोगों से इंस्पायर होके आपकी अपनी ड्रीम्स होती हैं कि आपको क्या करना है, बट आई डू फील दैट in all of that you should not lose your connections and your values and your जो आपकी inner जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आप नहीं उसको लूज करो इन दैट प्रोसेस, आई थिंक दैट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, बिकॉज ऑनेस्टली आप जिंदगी जो है वो वी आर एज ह्यूमंस वी आर सोशल एनिमल्स, और हम लोगों को अपना इर्द गिर्द जो है वो इन लोग और अपने लोग होना बहुत ज़रूरी है, एंड आई थिंक यहाँ पे वही बात जो आती है कि लाइक कनेक्टिविटी इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, जहाँ पे हम इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करते हैं वहाँ हम ह्यूमन Human कनेक्टिविटी भी connectivity. मेंटेन रखें, सो आई थिंक दैट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली एसेंशियल, या That was a wonderful message, Nadia. Thank you so much for your time. It नॉट was एट so ऑल. lovely talking to you. And thank you so much to the audience. I hope that this must have been very enjoyable yet insightful conversation for you. और जैसे नादिया ने कहा कि कनेक्टिविटी सोशल मीडिया की तो इतनी बरकरार है, ज़रा ह्यूमन कनेक्टिविटी भी रखें एंड बी रेजिलिएंट. अपने घर वालों का साथ ना ज़रूरी है कि उनको साथ लेके चलें, तो उससे मुझे लगता है कि वो चीज़ हमेशा रहेगी, वो प्यार, वो मोहब्बत रहेगा, एंड यू विल नेवर बी आइसोलेटेड इंशाल्लाह. एंड आई विल कैच अप विद यू इन अनदर एपिसोड ऑफ कैच अप विद आयशा. टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें और प्लीज़ कराची को बहुत साफ रखें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.